Now let's start the textual exercise of chapter number 4. First question based on MCQ. The Mughals traced their lineage to, the correct answer is Timur and Genghis Khan. Question number 2. Babur defeated Ibrahim Lodi in the correct answer is First Battle of Panipat. The Mughal empress who struck coins in her name was, the correct answer, Noor Jahan. The Mughal ruler who executed the 9th Sikh leader Guru Tegh Bahadur, the correct answer is Aurangzeb. Next is, question number 5. A unique system of ranks introduced by the Mughals in the army and administration was the Mansabdari system. Okay, now come to the true false. State whether the following statements are true or false and rewrite the incorrect statements to correct them. Okay, now come to the first question. The foundation of the Mughal Empire in India was laid by Babur. It is true. Okay. One of the Sher Shah Suri's greatest achievement was the construction of the Taj Mahal. It is false. It is not the Shah Jahan. It was the greatest. Not the Sher Shah's achievement. It was the achievement of the Shah Jahan. Okay, you have to remember that one. Next question. Sir Thomas Roe visited Shah Jahan's court. It is false. He visited to Jahangir's court. Okay. Now question number 4. The Mansabdari system introduced by Akbar was a gradation system to determine the rank, salary and military responsibility of the Mansabdar. It is true. Question number 5. The Muhtasibs in Mughal administration maintained public order and decorum. It is also true. Okay, now come to the one sentence question answer. Question number 1. Name the two famous ancestors of Babur. The correct answer is the Babur's two famous ancestors were Timur and Genghis Khan. Next question is, why did Humayun escape to Persia? Okay, you have to give the answer. When Sher Shah defeated Humayun decisively in the battle of Chausa and Kannauj, the latter had to seek shelter in Persia under Shafafid शाह. जब वो हुमायूं शेर शाह से डिफीट हो गया था चौसा और कन्नौज के बैटल में, तो उसने शेल्टर लेने के लिए वो उनसे बचने के लिए वो पर्शिया चला गया और शफाविद खां के अंडर में उन्होंने शरण ली. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. डिफाइन जट एंड सवार. Jat, what is Jat? Fixed Mansabdar's personal status and salary, while Sawar indicated the number of cavalrymen the Mansabdar could keep. Okay, now the question number 4. Who was known as the Jindapir? Obviously the answer will be the Aurangzeb. Aurangzeb known for his living. His lifestyle was like that, simple. So he referred to as Jindapir. Now question number 5. What are Jagirs? So Jagir, when the Mansabdar received their salary in the form of revenue assignments, they were called Jagirs. उनका revenue assignments, उनको जो salary मिलती थी इस form में मिलती थी, तो उससे हम क्या कहते हैं? जागीर कहते हैं. Right? Now question number 4. The first, answer the questions in brief. The first question is, what problems did Humayun face when he ascended the throne? How did he overcome them?
मीन्स जब हुमायूं गद्दी पर बैठा, थ्रोन पर बैठा, तो किस तरह की प्रॉब्लम उसने फेस की और कैसे वो ओवरकम हुआ, उससे बाहर निकला। ठीक है, तो आंसर देखो, जस्ट नो सूनर हैड हुमायूं असेंडेड द थ्रोन देन ही हैड टू फेस द हॉस्टिलिटी ऑफ द अफगान्स लेड बाय शेर शाह सूरी एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। अफ़गानों का उन्हें जो है एनिमिटी झेलना पड़ रहा था जब हुमायूं गद्दी पर बैठा। तो हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय द फॉर्मर एंड फोर्स to seek shelter in Persia. Later, however, Sher Shah Suri died, leaving behind weak successors. This gave Humayun the opportunity to recapture Delhi and Agra. तो जब तक शेर शाह सूरी जिंदा रहा तब तक हुमायूं ने शफाविद शाह के अंडर में पर्शिया में शरण ले रखी थी, लेकिन जब उसके मरने के बाद में अगेन उसने अपने को स्ट्रेंथन किया और दिल्ली और आगरा पर कैप्चर कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट है कि बहादुर शाह रेस्टेड बैक गुजरात एंड मालवा फ्रॉम हुमायूं। यहाँ पर उसने दूसरा जो अफगान लीडर बहादुर शाह का भी उसे काफ़ी जो है सामना करना पड़ रहा था। शुरुआत में उसने बहादुर शाह को तो बैटल में डिफीट किया था, बट आफ्टरवर्ड्स बहादुर शाह अगेन उसने मालवा और गुजरात को हुमायूं से वापस ले लिया। तो इस तरह से दो चीज़ें हैं जो उसको शुरुआत में फेस करनी पड़ी, एक तो शेर शाह सूरी का और दूसरा बहादुर शाह जफर मीन्स अफगान लीडर्स का उनका सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज दीन इलाही एक्सप्लेन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दीन इलाही क्या है? ये रिलीजियस पॉलिसी थी जो अकबर की तरफ से चलाई गई थी। तो इन 1581 से अकबर कंबाइंड the best features of all the religions known to him in a grand synthesis called Din-e-Ilahi. It was an ideological path that was based on reason rather than tradition. ठीक है, ऐसी जो पाथ थी जिसमें ये माना गया था जो भी चीज़ हम अडॉप्ट करते हैं उसके पीछे कारण क्या, ट्रेडिशन जो चला आ रहा है दैट इज़ उसकी जो नींव क्या है उसके पीछे, उस पर ज़्यादा जोर देता था कि मीन्स रीज़न से कोई चीज़ है उसके पीछे कॉज होगा तो ये चीज़ हम अपना रहे हैं, तो उस बेस्ड पर वो इस रिलीजन को उसने चलाया। एज एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट दीन इलाही लेड एम्फेसिस ऑन मॉरल वैल्यूज़, पिटी, कंपैशन एंड गुड कंडक्ट, जो मीन्स सभी धर्मों का एक निचोड़ जिसको बोलते हैं, उसमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया मॉरल वैल्यूज़ पर, दया, संभाव, सदाचार, इस बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया था दीन इलाही रिलीजन पर। ठीक है, लेकिन अकबर के मरने के बाद फिर ये दीन इलाही जो ये रिलीजन आगे फिर नहीं चल पाया। ओके, now the question number 3 is about write a note on Akbar's relationship with the rulers of Mewar. Now let's see the answer. The rulers of Mewar, Rana Uday Singh and later on Rana Pratap, did not accept the suzerainty of the Mughal emperor Akbar, unlike the other Rajput royals. मीन्स जो राणा उदय सिंह और उनका बेटा राणा प्रताप, ये दोनों ने उनकी जो सुजनिटी है अकबर की उसको एक्सेप्ट नहीं की थी, अदर्स राजपूत रॉयल ने जिस तरह से कर रखी थी। तो चित्तौड़ फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय द मुगल्स इन 1567 फोर्सिंग राणा उदय सिंह टू मूव आउट। इसके कारण 1567 में राणा उदय सिंह को चित्तौड़ फोर्ट से हाथ धोना पड़ा। फिर नेक्स्ट था राणा प्रताप हैड टू फाइट अगेंस्ट द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन 1576। उसी तरह से राणा प्रताप भी हल्दीघाटी की लड़ाई में उनकी भी पराजय हुई थी 1576 में, मीन्स उन्होंने अकबर ने उन्हें परास्त किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मेवाड़ है जो जिन्होंने मुग़लों की अधीनता बिल्कुल नहीं स्वीकारी थी और 40 सालों तक उनका इनके साथ स्ट्रगल चलता ही रहा था, और लास्ट में जहांगीर के टाइम में फिर जहांगीर ने इसको शॉर्ट आउट, मतलब इस जो उनके बैटल्स है इनको इनका अंत किया। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. That is, how did Noor Jahan have considerable influence on royal affairs during Jahangir's reign? उनका किस तरह से रॉयल इन्फ्लुएंस में उनका इम्पैक्ट था वो लिखना है. तो नूर जहाँ एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस बिकॉज शी वॉज able woman. She placed her own family members in key position in the administration. उसने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने ही फैमिली को वालों को रखा. She also struck points in her own name during the last years of Jahangir's reign. जब जहांगीर का जो अंतिम समय था, अंतिम जो साल चल रहा था उनके शासन का, उस समय उसने उस अपने नाम से कॉइन को चलाया. फिर नूर जहाँ विल टू मच इन्फ्लुएंस दैट प्रिंस खुर्रम और शाहजहाँ हैड रेस्ट पावर फ्रॉम हर. और प्रिंस खुर्रम और इनके बीच बिल्कुल स्ट्रगल होता रहता था नूर जहाँ का. और फिर लास्ट में शाहजहाँ ने अपना वापस पावर अपने हाथ में ले लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट वाज द रोल ऑफ द मुगल एम्परर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर? उनका क्या रोल था मुगल एम्पायर का? तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द एम्परर हेल्ड द एब्सोल्यूट पावर. उनके पास सभी पावर जो मेनली होते थे एम्परर के हाथ में होता था. ऑल डिसीजन ऑफ द स्टेट वेयर कैरिड आउट इन हिज हैंड. ऑल डिसीजन उनकी तरफ से लिया जाता था. ऑल नोबल्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स इन द एम्पायर ओड देयर पोजीशन टू द एम्परर. मतलब उनको हेल्प करने के लिए होते थे नोबल्स. द एम्परर वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड द चीफ अथॉरिटी इन द मैटर्स ऑफ जस्टिस. ठीक है, ये इनके एम्परर का रोल होता था. नाउ द कम टू द क्वेश्चन इन डिटेल. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पॉलिसीज वेयर फॉलोड बाय द अकबर इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिज रिलेशन विद द राजपूत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राजपूतों के साथ मैंने आपको क्लास डिस्कशन में भी बताया था कि जो अकबर दिल्ली के आजू बाजू के प्रोविंसेस थे वो मेनली राजपूतों के थे. राजपूत डायनेस्टी रूल कर रही थी. तो अकबर को मालूम था कि इनको बिना अपने में मिलाए वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से नहीं चला सकता है. तो इसके लिए उसने कई पॉलिसीज़ अपनाई. सबसे पहले अकबर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, वो चलाया. फिर ही ऑनर्ड द सेवरल राजपूत चीफ्स विथ हाई पोजीशन. ठीक है, हाई पोजीशन में उन्होंने अपने कई राजपूत चीफ्स को रखा, जैसे राजा टोटरमल थे एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में, और मान सिंह थे. फिर एज द एम्परर अकबर अलाउड सम राजपूत टू कंटिन्यू देयर रूलिंग इंडिपेंडेंटली एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड हिम एज देयर सॉवरेन एंड पेड रेगुलर ट्रिब्यूट टू हिम. और साथ में उसने वतन जागीर वाला सिस्टम भी अपना रखा था. इसमें क्या था कि जो राजपूत है वो अपने उनकी सॉवरेंटी को एक्सेप्ट तो कर ले रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते थे राजपूत्स. एंड ओनली दे हैव टू पे द रेगुलर ट्रिब्यूट टू अकबर. ठीक है, तो ये पॉलिसी भी था अकबर ने उनके साथ अच्छे रिलेशन सेटअप करने के लिए. फिर ही डिड नॉट middle in the internal affairs of the Rajput state which accepted his sovereignty and abolished taxes such as jizya and pilgrimage tax. तो जो नॉन हिंदी से जो लिए जाते थे टैक्सेस, उस टैक्सेस को अकबर ने एबॉलिश कर दिया. और साथ ही हायर ऑफिशियल पोस्ट पर जिसने राजपूत ने सोजर्निटी एक्सेप्ट कर ली थी अकबर की, तो वो उनके इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी नहीं करता था. कौन? अकबर. ठीक है, तो अकबर डिड नॉट मिडल इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द राजपूत स्टेट्स which accepted the sovereignty. Okay, now the question number 2. Write a short note on Akbar's religious policy. Here again you have to write the अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, उसके बारे में बताना है. तो क्या लिखना? सबसे पहले उसने क्या सुले कुल उसने स्टार्ट कराया. दिस कॉन्सेप्ट, उसके पीछे क्या कारण था? दिस कॉन्सेप्ट मीन्स यूनिवर्सल पीस एंड वाज सेंट्रल टू अकबर्स बिलीफ. ही built his entire system of governance
around this idea of peace with all. ठीक है. Then after Deen-e-Ilahi, that was in 1581 CE, Akbar engineered a unique combination of the main elements of all religions, which is termed as Deen-e-Ilahi. It was more of a way of ethical living based on the best practices common to nearly all religions. And then Ibadat Khana, that Akbar had a hall of prayer which was built at Fatehpur Sikri in 1575. Here he invited religious heads, mystics and theologians hailing from the diverse religious backgrounds to debate and discussion their beliefs with him. Having heard them out, he concluded that all religions had similar goals. So these was the policies of Akbar's religious policies of Akbar. Next question is, what were some of the major development during the reign of शाहजहाँ? शाहजहाँ के जो पीरियड में क्या मेजर डेवलपमेंट हुआ? ठीक है. Sorry, question number 3 is there. Describe the Mansabdari system of Akbar. It is very important, Mansabdari system. You have to learn it properly. One of the unique system of Mughal Empire. In this system, each officer or Mansabdar had a fixed graded rank, which they could change for a higher rank if they were loyal. ठीक है. Means इसमें जैसे जैसे लॉयल होता जाता था और उनको रैंक उनका चेंज भी होता जाता था, हायर रैंक मिल सकता था. द ऑफिसर मनसबदार हैज़ पेड द सैलरी बेस्ड ऑन हिज रैंक. ठीक है. द रैंक ऑल्सो डिसाइडेड इज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी. द लोएस्ट रैंक फॉर द नॉबल्स वॉज 10 while the highest was 5,000. Each rank was divided into chart and sawar, which the former being used to fix a mansabdar salary and status, while the latter decided how many cavalrymen he had to maintain. Means जो चार्ट होता था वो मनसबदार की सैलरी और स्टेटस से रिलेटेड होता था, और जो सवार होता था दैट डिसाइडेड हाउ मैनी कैवलरीमैन मनसबदार कैन मेंटेन. ठीक है. नेक्स्ट, in lieu of payment of salary, Mansabdar held jagirs or revenue assignments which were not hereditary, and they only had the right to collect the revenue while in service. तो जो सैलरी मिलती थी उनको, उसके लिए मतलब उनको पेमेंट जो सैलरी होता था, रेवेन्यू असाइनमेंट दे दिया जाता था और उसको जागीर बोलते थे. एक उनके सैलरी के एक हिसाब से उनको ज़मीन दिया जाता था जहाँ से उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, और वो रेवेन्यू वो उनकी सैलरी के बराबर होता था. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वेर सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ? तो क्या क्या उनका डेवलपमेंट था? तो सबसे पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 डेकेन, इस पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड द 3 डेकेन स्टेट्स बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर वेर सब्जुगेटेड. मुगल एम्पायर में मिल गए. मीन्स डेक्कन की तरफ इनका मूवमेंट शुरू हुआ. द रिवॉल्ट ऑफ द बुंदेल राजपूत वॉज डील विथ इफेक्टली. जो बुंदेल राजपूत उनके साथ इफेक्टिवली रिवॉल्ट को डील किया शाहजहाँ ने. पदशाहनामा, द क्रॉनिकल ऑफ द एम्परर. The official history was written by Abdul Hamid Lahori. Another work, the Shah Jahan Nama, was written by Inayat Khan. तो ये सारी जानकारी इनके this work we can come to know about this chronicle and about this autobiography. ठीक है. Shahjahan had a network of roads built to improve trading activities. Cities such as आगरा, लाहौर, दिल्ली एंड अहमदनगर वेर कनेक्टेड. उसने रोड नेटवर्क पर भी काफ़ी काम किया. ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड इनकरेज स्कॉलर्स, आर्टिस्ट एंड फिलोसफर्स. पर बहुत ही ज़्यादा वो आर्ट, आर्किटेक्चर को इनकरेज करने वाला था. उसने स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स, फिलोसफर सबको काफ़ी इनकरेज किया. नाउ द कम टू द last question, 5th. Describe the main features of central and provincial
एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल्स। अब कौन कौन से, अब यहाँ पर इनके डिवीज़न, प्रोविंशियल डिवीज़न के बारे में यू हैव टू डिस्कस। द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स वॉज बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ पावर। देखो अब यहाँ पर जो सेंट्रल और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थे वो किस तरह से डिवाइड थे, लेट्स सी। मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबा, ईच and Suba is known as provinces. Each provinces was under the Subedar who looked after public works and welfare activities. Next, Shubas were further subdivided into Sarkars या district which were under a Fajdar who was the law enforcement officer. फिर Sarkar is divided into groups of villages that is called Pargana which was under the administrative control of Sikdar and an Amil. And they maintain the law and order. तो यहाँ पर आपको देखना, सूबा वॉज कंट्रोल्ड बाय सूबेदार, सरकार फौजदार, परगना सिकदर एंड अमील, एंड देयर वर्क इज टू कीप लैंड रिकॉर्ड एंड डिड वर्क ऑफ टैक्स कलेक्शन. Next, at the lowest village level, the Mukadam and Patwari fulfilled similar administrative function of maintaining order and collecting revenue. Lastly, even though these divisions were administered by different departments headed by a specific officer, absolute authority resided with the emperor himself. ठीक है, अब इतने सारे जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके कंप्लीट है. लर्न इट प्रॉपरली. फर्स्ट यू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न इट प्रॉपरली. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.